Dear students, today I will be taking the topic of hypoglycemia. It is one of the most common emergency which is likely to be seen in the emergency casualty department or even at home, where the patients of diabetes may be having this type of ailment or episode off and on because of certain factors which are not known to the patient. So I am Dr. Ashok Rana, and my app is Dr. Ashok Kumar Rana from the Google Play Store. Download it and subscribe to it, and from there you can go to my Class Plus app, which is having courses for BMS emergency medicine and for BDS third year medicine. So starting with the topic of the day, that is hypoglycemia. First is definition. Hypoglycemia. Hypo itself means low. Hypo means low. This means low. So what is the literal meaning is low blood sugar levels. So the medical terminology is hypoglycemia. Otherwise, in vernacular language, we say it is low blood sugar. And the levels below 70 milligram per deciliter. Below 70 milligram per deciliter level is taken as hypoglycemia. But the point to be noted is that a patient who is having diabetes and having uncontrolled blood sugar of around about 300 to 400 milligram per deciliter, the levels of sugar round about 100 to 120 may also present with features of hypoglycemia, because the patient's body is set up at the level of 300-400. So when it is 100 to 120 इस रेंज में होती है, then the patient is likely to have the features of low blood sugar or hypoglycemia. As you know, the normal levels of blood sugars are 70 to 110 milligram per deciliter. So this is a fasting blood sugar level, 70 to 110 milligram per deciliter. Below 70 level is labeled as hypoglycemia. The levels of hypoglycemia vary in patient to patient. Now coming to the causes of hypoglycemia, because you must know why it occurred, and the causes are of hypoglycemia are causes. Now causes of hypoglycemia, number one, very important cause is, it is first of all more common in type 1 diabetes, that is insulin dependent diabetes. So in diabetes, first cause in diabetes, and that is type 1 insulin dependent diabetes. In those patients, excess of insulin dosage taken without any meals, the patient is likely to go into hypoglycemia and a severe type of hypoglycemia. So this is in type 1 diabetes because of the overdosage of insulin and without taking any meals. Now in type 2 diabetes, that is non-insulin dependent diabetes, in those patients, the patient has taken the oral hypoglycemic agents or a combination of OHA plus insulin, and he has forgotten to take meals as prescribed by the physician or endocrinologist with the medicine, that may lead to or precipitate the onset of hypoglycemia. So first cause is in diabetics type 1 में excess of insulin, in type 2 it is excess or OHA medicine
without meals. Now in non-diabetics also there is patients of hypoglycemia. कैसे होता है कि उनमें पेशेंट में फॉर एग्जांपल इन केसेस ऑफ स्टारवेशन, जैसे भूख हड़ताल पे बैठते हैं, आपने देखा होगा कि भी जो लीडर्स हैं भूख हड़ताल पे बैठ गए, जो हम फास्ट अनटू डेथ, तो उसके रोज डॉक्टर आके चेक करते हैं, उनके शुगर लेवल, यूरिन में कीटोन्स चेक करते हैं। जिस डेट पे उसको कीटोन्स आने अपीयर हो जाए और शुगर उसकी फॉल कर जाए, उसी दिन वो गवर्नमेंट जो ऑर्डर करती है कि इसको, जो भूख हड़ताल पे बैठा है, इसको उठा के हॉस्पिटलाइज कराओ और ड्रिप लगवाओ। सो दैट इज स्टारवेशन। और पेशेंट टेकिंग लेस ऑफ मील्स, जैसे कि उपवास रख लिए बहुत सारे, लगातार 8-10 हमने उपवास रखे, सिर्फ पानी पिया या कुछ भी नहीं लिया, उन केसेस में patients are likely to go into hypoglycemia. Then second cause in non-diabetics is excess of exercise or too much exercise. जैसे कि हमने जिम पे गए, 2-2 घंटे जिम कर रहे हैं without taking any meals, तो उन पेशेंट्स में भी hypoglycemia हो जाता है. Number third is drinking excess of alcohol without associated, कोई उसके साथ हम मील्स लें या उसके साथ कुछ भी स्नैक्स ले रहे हैं, वो कुछ नहीं लिया, सिंपल नीट अल्कोहल पी, उन पेशेंट्स में भी जो है हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है. सो कॉजेज, दैट मीन्स फर्स्ट इन डायबिटिक्स टाइप 1 में एक्सेस ऑफ इंसुलिन, एंड इन टाइप 2 एक्सेस डोजेज ऑफ OHAs और पेशेंट हैज टेकन OHA विदाउट टेकिंग एनी मील्स. In non-diabetics, starvation, then too much of exercise, and third is drinking alcohol without eating anything along with the alcoholic beverages. So these are the causes. Now coming to the clinical features, what are the various symptoms and signs? Now the most important point is the patient starts having shakiness of the body. Patient ऐसे जो है उसके हाथ पैर कांपने शुरू होते हैं, शेकीनेस ऑफ बॉडी. देन पेल्पिटेशन, टेकिकार्डिया और पेल्पिटेशन, एंजाइटी एंड हंगर. पेशेंट कहेगा मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को खाने को मिल जाए कुछ. एक्सेस ऑफ एंजाइटी एंड हंगर. टिंगलिंग फीलिंग इन द माउथ एरिया, यहाँ पे सुइए से चुभेंगे पेशेंट इस एरिया. और इसके साथ साथ पेशेंट को क्या होता है, अगर और भी ज़्यादा कम शुगर हो गई तो पेशेंट कंफ्यूजन में चला जाता है, उसको विजुअल डिफिकल्टी, उसको देखना बंद हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, ब्लर्ड विजन जिसको हम कहेंगे. बिहेवियरल चेंजेस, पेशेंट अपना कुछ कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, और फिट्स भी पड़ सकते हैं, कन्वल्शंस भी हो सकते हैं. एंड इन वेरी सीवियर patients of hypoglycemia, patient may go into coma or unconsciousness which may be irreversible. So इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लो शुगर को इमीडिएट डायग्नोज करना चाहिए, बिकॉज जो ब्रेन है हमारा 3 मिनट से कम टाइम के लिए अगर शुगर हमारे ब्रेन को कम हो गई तो ब्रेन डेड हो जाता पेशेंट. तो इसलिए इट शुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल टू डायग्नोज हाइपोग्लाइसीमिया एंड देन गिव द ट्रीटमेंट. Along with these things that I have told you, the patient may have nausea, may have vomiting, may have on examination dilated pupils. So कॉमन लक्षण, जो कॉमन सिम्टम्स जो कि किसी भी बीमारी में हो सकते हैं, पर हमें डायबिटिक पेशेंट में ये पता होना चाहिए कि आज मम्मी ने या पापा ने या दादा दादी ने इंसुलिन लगा लिया और दवाई लेनी भूल गए, या गोलियां खा ली दवाई लेनी भूल गई, या व्रत रखा हुआ है इस वजह से खाना नहीं खाया और मम्मी को ये प्रॉब्लम हो रही है, शेकीनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस, बिहेवियरल चेंजेस, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जब आपने देख लिया पेशेंट को भी ऐसे हो रहा है तो हाउ टू ट्रीट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल it is an important emergency and patient should be treated on emergency lines. If blood sugar level is less than 70 mg/%, then follow 15-15 rule. क्या होता है 15-15 rule? 15-15 rule
इसमें क्या है कि हमने शुगर चेक करी और 15 ग्राम पेशेंट को हमने ग्लूकोज दे दिया। 15 ग्राम मीन्स 3 to 4 TSF ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, और पेशेंट को हमने दे के 15 मिनट वेट किया। फिर अगर पेशेंट की शुगर हमने चेक करी नहीं बढ़ी, फिर हमने वो रिपीट किया। सो दिस इज कॉल्ड 15-15 रूल। 15 grams of carbohydrates, check after 15 minutes, eat another 15 gram, check after 15 minutes, and keep doing until it becomes normal. Normal means more than 70 milligram per deciliter. That may be 80, 90, etc. Now foods that contain 15 gram of carbohydrates, they are 15 large red or green grapes, 15-20 अंगूर के दाने, एक स्मॉल एप्पल, आधा कप आइसक्रीम और 2 स्मॉल कुकीज, हाफ कप ऑफ फ्रूट जूस। इन चीज़ों में लगभग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट ऑफ दैट आप सिंपल घर में 4-5 चम्मच चीनी के पानी में घोल के, दूध में घोल के, चाय में घोल के वो भी दे सकते हैं। अगर घर में जूस नहीं है, अंगूर भी नहीं है, अंगूर भी सीजनल फ्रूट है, हर टाइम अवेलेबल नहीं, तो आप सिंपल जो है हमारे पास ग्लूकोज रखा हुआ है और शुगर, वो हम देंगे। और उसके देने के बाद जैसे ही पेशेंट की शुगर 70 के आसपास आ रही है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट साथ में देंगे, लाइक सैंडविच दे देंगे ब्रेड का बना के, रोटी पड़ी है रोटी दे दीजिए, पराठी बना के दे दीजिए, जो भी घर में सब्जी के साथ पड़ा है वो दे दो आप, so that recurrence of hypoglycemia can be prevented. So एक चीज तो हमें ये ख्याल रखना। नंबर सेकेंड, अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, ये तो लो वाला था, मतलब ज्यादा माइल्ड टू मॉडरेट है। सीवियर में क्या हुआ, लेस देन 30 to 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना सीवियर हो जाए पेशेंट बेहोश हो गया, उस केस में क्या क्या फाइंडिंग होते हैं पेशेंट में, कंफ्यूजन, बिहेवियरल चेंजेस, देन स्लर्ड स्पीच, पेशेंट की आवाज जो है स्लरिंग ऑफ वॉइस हो जाती है, क्लमजी मैनूवर्स, कोई भी चीज उठाएगा ऐसे गिर जाएगा, कप उठाएगा कप गिर जाएगा, बाल करने लगेगा तो बाल हाथ इधर चला जाएगा, तो क्लमजीनेस इन द हैंड्स, देन ब्लरिंग ऑफ विजन एंड सीजर्स, झटके भी लग सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन मे बी ए sign of severe hypoglycemia. So in that case patient has to be admitted in the casualty department and immediately 25% glucose is to be administered, 100 ml, 3 to 4 bottles, 100 ml की 2 में। उसके बाद after 3 bottles get the blood sugar done or wait for some time, give only dextrose 5% and again assess the sugar level, and this is how we are to treat the patient at the hospital casualty for severe hypoglycemia. Now hypoglycemia एक और इम्पॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है कि hypoglycemia can also cause motor vehicular accidents. मैंने एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, उसमें आप देखोगे, उसमें मैंने वीडियो का कैप्शन है ड्राइविंग एंड डायबिटीज। उसमें क्या है कि डायबिटिक पेशेंट इफ ही गेट्स हाइपोग्लाइसीमिया व्हाइल ड्राइविंग द कार, तो पेशेंट बेहोश होके या उनको कंफ्यूजन होके, बिहेवियरल चेंजेस या उसकी क्लमजीनेस की वजह से ही कैन गेट मोटर वेहिकुलर एक्सीडेंट्स, या वो पेशेंट फॉल कर सकता है, रोड साइड एक्सीडेंट इट मे कॉज, and similarly so many injuries, head injuries etc. may occur. So this is very important to recognize hypoglycemia. Now I will tell you how to take care of hypoglycemia in a patient in the family. एक परिवार में हमें हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे डायग्नोज करना है और उसको वहीं पे हमें कैसे ट्रीट कर सकते हैं। Now all the attendants of the patient, that means family members of the patient, should be explained the problem of hypoglycemia. They should be explained the symptoms of mild to moderate and severe hypoglycemia, and accordingly they should be made to understand that
ये जो 15-15 का रूल है इसको फॉलो करना। 15-15 के रूल में हमें घर पे उनको ये भी बता के रखना है कि तो आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए जो इमीडिएट हम चेक कर सकें। नंबर 2, ग्लूकोज पाउडर होना चाहिए, शुगर के होने चाहिए, चॉकलेट कैंडीज होनी चाहिए, और इसी तरह का मीठी चीज़ें, बिस्किट्स हो गए, और फ्रूट्स कोई मीठे वाले जो मतलब थोड़े घर में रखे होने चाहिए इन रिजर्व। रिप्लेनिश करते रहे, ये नहीं कि भी वो 1 दिन पुराने हम बदलते रहें, उसको कंज्यूम करते रहें और ड्राई रखते रहें। और पेशेंट के जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनको सबको ये बताना चाहिए कि भी हमें समझाना चाहिए, एज ए डॉक्टर हमारी ड्यूटी है कि भी ये सिम्टम होंगे, शेकीनेस होगी, स्लर्ड स्पीच, ब्लरिंग ऑफ विजन, क्लमजीनेस ऑफ हैंड्स, पेशेंट को लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, कुछ कुछ बोल रहे हैं, या उनको चक्कर आके वर्टाइगो, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें अगर हो रही तो इट मीन्स पेशेंट हैज़ हाइपोग्लाइसीमिया। तो इमीडिएट शुगर चेक करके आप उनको शुगर के 15 ग्राम शुगर या ग्लूकोज आप दो। 1 चम्मच जो है 5 ग्राम का होता है, जो टीस्पून है, तो 3 या 4 चम्मच पानी में घोल के दो, दूध में घोल के दे दो, चाय बना के दे दो। साथ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सैंडविचेस, पराठी और चपाती विद सब्जी, मिक्स जो भी वेजिटेबल्स हैं, और दूध भी दे सकते हैं, कॉफ़ी भी दे सकते हैं बना के, एंड कैंडीज एक्सेट्रा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें घर में इंजेक्शन ग्लूकागॉन, तो वी शुड कीप 1 or 2 इंजेक्शंस ऑफ ग्लूकागॉन विच इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज विच प्रोड्यूसेस और विच लीड्स टू रेजिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागॉन से क्या होता है, ब्लड शुगर, इंसुलिन को सप्रेस करता है, शुगर बढ़ती है। तो वो इंजेक्शन हमारे घर पे हर पेशेंट जो डायबिटिक है वो पड़ा होना चाहिए, और साथ में सिरिंज होनी चाहिए 2 ml वाली, और स्वैब्स होने चाहिए। और हर पेशेंट के अटेंडेंट को हर एक को ये सिखाना है कि भी इंट्रामस्कुलर लगाना है, चाहे यहाँ पे लगा दो, चाहे यहाँ पे लगा दो, चाहे ग्लूटियल रीजन में लगा दो। दे शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड एंड टॉट द टेक्निक ऑफ इंजेक्शन। कुछ नहीं करना, इंजेक्शन ऐसे लगा के उसमें ये देखना बैक करके कि ब्लड तो नहीं आ रहा, और ब्लड नहीं आ रहा तो IM देते। सो एवरीबॉडी एट होम शुड बी explain the importance of injection glucagon and how to administer injection glucagon at the time of need। और उसके बाद फॉलो अप मेजर में हाइपोग्लाइसीमिया में हमें क्या करना होता है, पेशेंट को जिस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हुआ पेशेंट को, फॉर एग्जांपल इट इज बिकॉज ऑफ ओवरडोजिंग ऑफ इंसुलिन, ओवरडोजिंग ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, दैट should be taken care of. Patient should be made to understand the importance of insulin along with meals। अगर आपको मील्स नहीं मिल रही, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी भी उसमें आपको लग रहा है कि आपको खाना लेट मिलेगा, सो इंसुलिन आप मत लगाइए या बहुत लो डोज लगाइए, ऐसा ना हो कि रास्ते में आपको हाइपो हो जाए। सिमिलरली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को अभी यही है कि हमें उस टाइम ही लेनी है जब हमारे पास खाना हमारा तैयार है। अगर हमारी मील्स तैयार नहीं है तो हमें जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं नहीं लेने, हमें तब लेने जब हमारा खाना अवेलेबल। इसलिए हम लोग रमज़ान में, नवरात्रा में जो होते हैं उपवास रखते हैं लोग, उसमें हम यही बताते हैं कि अगर डोज आप, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स रमज़ान पे 30 दिन के होते हैं लगभग, उनमें सुबह शाम खाना खाते हैं वो लोग, तो हम उनकी डोजिंग भी सुबह शाम की करते हैं, थोड़ी डोज को एडजस्ट करते हैं, लो कर देते हैं, सो दैट के दिन में पेशेंट ने कुछ नहीं खाना, वो हाइपो ना हो। सिमिलरली नवरात्रे के उपवास या इस तरह के जो भी उपवास हिंदू धर्म में आते हैं, उनमें भी हम यही कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है या तो उपवास ना रखें, अगर उपवास रखेंगे तो उनको अपनी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो हैं उनकी मात्रा को कम करना चाहिए। दे शुड बी reducing the dose of oral hypoglycemic agents with the help of the physician। So this is the topic which is very important and is to be handled at home, and if it is very severe, the patient should be shifted to the hospital by calling ambulance 102 or through your own vehicle to the nearest hospital, where it should be immediately intravenous glucose should be given by the physician। So with this I will close the topic of hypoglycemia। I request you to go to Google Play Store, open my app Dr. Ashok Kumar Rana, and go to the
Class Plus app. Along with it, you will get there various other topics and also this topic. So thank you and wishing you all the best.